हेलो एवरीवन, मेरे साथ हैं आज मोहित सिंह नेगी और 2023 में ये सिलेक्टेड हुए हैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर मेरे साथ ही। और आज हम जानेंगे कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। और एंड में ये भी जानेंगे कि ये क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि 2024 में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मोहित, वेलकम। और प्लीज़ आप अपने बारे में पहले ब्रीफ में बता दो थोड़ा। Thank you, Sachin. So, hello guys, myself Mohit Singh Negi and I'm from Almora, Uttarakhand. I've done my schooling and BTech from Uttarakhand itself. In 2023, I got GATE All India rank 119, and because of my GATE rank and score, I got a interview call from the NPCIL and I got selected there. And now I'm working here as a scientific officer with Sachin. So maybe I would like to ask you what are the questions were asked to you in the interview, Yeah. and आपका इंटरव्यू कहाँ पे था ये मतलब? Yes. So my interview was held in Narora, and I go there. I went there from Haldwani, and after that, when I reached there, the onboarding facilities provided by NPCIL itself, and there are 8 members in the panels when I entered in the interview room, and one is chairman and one woman is there, and all the members are male there. So when I entered the room, I firstly say good morning to the chairman, and after that to the lady member, and after that all the members. So the first question they asked me that what is your final year project. So they ask about that, and my final year project is good, because I have done work on that. That is based on a 3D printing. So I tell them about the 3D printing that I have done this project. So they ask 1 and 2 questions from the 3D printing, and after that they ask question from the core branches. So they asked me to write the subject which I like and which I have read. So I write 8 subjects there because I know because I have read that they ask from the power plant, fluid machinery. So and I also wrote some subjects. So basically you wrote all the subjects. All the subjects. I also wrote the industrial engineering there. Oh. RAC, industrial engineering, HMT. Did they ask anything from industrial engineering? Yes, they ask only one question from the industrial engineering. Oh. Only one question, and that is on the Queen theory. Only one question. The first question from the core is they asked me about the open channel flow. So I said them, sir, I don't know about the open channel flow because it is not in the GATE syllabus. But they asked me to you think about it. So the question is how do you measure a flow in a open channel flow? So of course I don't know the answer. लेकिन फिर भी मैंने क्या किया ना कि मैंने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की. मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे आता तो था नहीं. तो मैंने प्रिटेंड किया मैं सोच रहा हूँ. मैंने कहा कि सर मेरे को टाइम दीजिए 1 मिनट 2 मिनट सोचने का. तो मैंने सोचने की ट्राई किया. मेरे को 10 सेकंड में जो मेरे दिमाग में आना था आ गया था. बट मैंने फिर भी उसको थोड़ी देर ऐसे दिखाया कि हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ. तो फिर मैंने आंसर किया कि ओपन चैनल फ्लो पढ़ा तो था नहीं. तो मैंने बोल दिया कि सर मैं एक पिटॉट ट्यूब लूँगा, और मैंने ये बोला कि उनसे कि मैं जो वेलोसिटी है जो ओपन चैनल में उसको कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, एक कांस्टेंट वी मान के चल रहा हूँ, और मैं एक पिटॉट ट्यूब लूँगा, और उसमें क्योंकि अब प्रेशर हेड तो 0 हो जाएगा, ओपन चैनल फ्लो है, तो ओनली जो वेलोसिटी का हेड मेरे को मिल जाएगा. यहाँ से v²/2g इसका 2h मिल जाएगा. तो वहाँ से मैं v निकाल लूँगा. v पता चल गया, मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो वहाँ से मेरा फ्लो पता चल जाएगा. तो उनने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, तुम सपोज तुम पे कुछ नहीं है तब कैसे मेजर करोगे. तो मैंने कहा सर अगर आप कुछ नहीं है तो फिर तो मेजर नहीं हो पाएगा. तो उनने बोला कि तो आप बताओ आपको क्या चाहिए. तो फिर मैंने थोड़ी देर फिर सोचा. फिर मैंने बोला कि सर आप मेरे को एक फ़ोन दे दीजिए और एक वाटर बॉटल दे दीजिए ताकि मैं उनने बोला कि क्यों, तुम क्या करोगे इससे. तो मैंने बोला कि मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन है उस ओपन फ्लो चैनल का, ठीक है, और मेरे पास वाटर बॉटल का चैनल का क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो मैं देख लूँगा कि वाटर बॉटल में पानी भरने में कितना टाइम लग रहा है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो ओपन चैनल का क्रॉस सेक्शन है, उसके क्रॉस सेक्शन डिवाइड कर दूंगा इनटू वो करके वहाँ से मैं फ्लो निकाल लूँगा.
तो वो सब हंसने लगे क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है नहीं उसका, ये बस मैं सोच के बता रहा था, मुझे पता कुछ था नहीं। मतलब क्रिएटिव आंसर। हाँ, मैंने सोचा वहाँ पे। तो फिर उनने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर उनने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मेरे को कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो मेरा जो पहला आंसर था ये कि वो थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल जितना भी कंडक्ट हो रहा है उसको बताता है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक कंडक्टर बताता है। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, इसको एक्सप्लेन करो। तो फिर मैंने थर्मल कंडक्टिविटी बताया कि किस रीजन से लेटेस्ट वाइब्रेशन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड इन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दे आस्क मी दैट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सो मैंने पढ़ा तो था नहीं है कि ऐसा कुछ रिलेशन तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। कोई रिलेशन है लेकिन उसमें हाँ, टेम्परेचर और इसको फिर इस टेम्परेचर से करके कोई रिलेट होता है। हाँ, तो ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर आई हैव नॉट रेड दिस, बट इन केस ऑफ द डायमंड देयर इज in the diamond the thermal conductivity is very less, but the the electric conductivity is very less but the thermal conductivity high. But if we talk about the copper, thermal conductivity is also good and electric conductivity is also good. So मैंने कहा कि सर मैं इससे कुछ निकाल तो नहीं पा रहा हूँ, इसमें वो मैं कुछ रिलेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ। उनने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उनने मेरे को बोला कि दो साफ्ट हैं और एक साफ्ट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो तुम दूसरी साफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे घुमाओगे। तो फिर मैंने कहा कि सर मेरे को एक पेपर और पेन दे दीजिए, मैं थोड़ा सोचता हूँ करता हूँ। तो उनने बोला कि ये है ना ब्लैक बोर्ड, आप पीछे ब्लैक बोर्ड में जाइए और ब्लैक बोर्ड में करिए सॉल्व। तो मैंने पहले तो दो साफ्ट बनाई, फिर मैंने सोचा, तो फिर मैंने क्या किया उसमें गियर लगाया, एक गियर ऐसे लगाया, उसके नीचे से दूसरा लगाया, कंपाउंडिंग गियर जो होती है उस टाइप की लगाई। अब मैंने क्या किया ना, फर्स्ट में एक गियर लगाया, उसके नीचे गियर लगा के यहाँ पर से दूसरे गियर से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसमें छोड़ दिया, फिर मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है अब इसमें ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो फिर मैंने जो दूसरी साइड था वहाँ पे एक और गियर लगा दिया क्योंकि वो अपोजिट कर देगा डायरेक्शन को। तो उनने बोला चलो ठीक है बढ़िया। तो उनने बोला कि अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को इसी पावर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजना है तो तब कैसे भेजोगे। तो अब मैं सोचने लगा कि अब एक तो अचानक से ध्यान नहीं आती चीज़ें जब आप इंटरव्यू रहते हो ना, तो फिर मैंने सोचा कैसे कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो बेवल गियर के बारे में पता है। तो जैसे उनने बेवल गियर कहा मेरे दिमाग में सीधा मिट्रे गियर घूमा। मैंने कहा कि हाँ सर मेरे को अचानक से ध्यान है, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने कहा सर इसको इधर को घुमाऊंगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे चला जाएगा। तो मैंने उनको थोड़ा सा मिट्रे गियर के बारे में भी बताया, उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उनने पूछा कि मेरे को बेल्ट और जो ये हैं चेन हाँ जो ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं इनके बारे में बताओ। तो मैंने उसके बारे में भी थोड़ा उन्हें ब्रीफ कर दिया था। एंड आफ्टर दैट दे आस्क मी अबाउट द डिफरेंशियल, कि डिफरेंशियल के बारे में बताइए कि डिफरेंशियल क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने बताया उन्हें डिफरेंशियल क्या होता है। तो उनने बोला कि इसमें कौन सी चेन किस टाइप का गियर यूज़ होते हैं। तो इलिप्टिकल जो गियर होता है वो यूज़ होता है, मैंने उन्हें वो बताया। तो चेयरमैन ने फिर मेरे से क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए कि डिफरेंशियल लगता कहाँ है गाड़ी में, आगे लगता है कि पीछे लगता है। तो अभी मैंने क्या किया था कि अपनी एक ट्रेनिंग जो थी वो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में की थी। तो उसमें जो बसेस होती है उसमें पीछे लगता है डिफरेंशियल। तो मैंने बोला कि सर पीछे लगता है। तो उनने बोला कि आगे नहीं लगता। तो फिर मैंने फिर थोड़ा सोचा, फिर मेरे को याद आया कि जो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं तो उसमें डिफरेंशियल आगे लगता है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर डिफरेंशियल आगे भी लगता है। तो उनने बोला कि हमने तो आगे पीछे दोनों जगह देखा है डिफरेंशियल। तो फिर मेरे को अचानक से क्लिक किया कि वो 4x4 होगा, क्योंकि जैसे थार वगैरह रहती हैं इसमें दो डिफरेंशियल लगते हैं आगे भी पीछे भी, क्योंकि डिफरेंशियल का काम तो वही है कि पावर को वो कर, तो जिस टायर पे भी पावर होती है वहाँ पे डिफरेंशियल लगता है। तो फिर मैंने ये आंसर बताया। तो उसके बाद उनने कहा चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद दे आस्क्ड मी क्वेश्चन अबाउट द रैंकाइन साइकिल। तो उनने मेरे से एक रैंकाइन साइकिल बनवाई। अब जो रैंकाइन साइकिल में उनने बोला कि पहले बनाओ, उसके बाद उनने बोला कि जो कंडेंसर में हम पानी को लेके जा रहे हैं और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक लेके जा रहे हैं, उनने बोला कि हम और पीछे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं इसे, हम यहीं पर तक क्यों लेके जा रहे हैं, हाँ सब कूल्ड रीजन क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर बताया कि सर अगर हम इसको सबकूल्ड लिक्विड की तरह लेके जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या, उसका तो कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि हमें और ज़्यादा आपको क्यों देना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी और हमारी एफिशिएंसी जो होगी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद एक मेंबर थे, उनने पूछा था कि साइक्रोमेट्री क्या होती है बताओ, क्योंकि मैंने RAC भी लिखा हुआ था। तो उनने साइक्रोमेट्री क्या होती है बताओ बोला। तो मैंने साइक्रोमेट्री के बारे में बताया। तो RAC उनने बस इतना ही पूछा था कि साइक्रोमेट्री के बारे में पूछा। फिर उसके बाद जो चेयरपर्सन थे उनने मेरे को एक सोम का क्वेश्चन दिया। उनने
पेन और पेपर पे एक क्वेश्चन बना के दिया मेरे को और बोला कि इसको सॉल्व करो ब्लैक बोर्ड पे। तो उसमें क्या था, एक शाफ्ट थी और शाफ्ट में 3 जगहों पे टॉर्क लगा हुआ था। तो उस टॉर्क की वजह से मेरे को उसका डिज़ाइन करना था। तो फिर मैंने उसका एसएफडी बना के वो एसएफडी बना के उसको डिज़ाइन करके दे दिया था और उनने बोला था कि चलो ठीक है। तो वो इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा वो सबसे। तो फिर उसके बाद जो लेडी पर्सन थी उनने मेरे से बोला कि अच्छा आप ये बताओ कि कंडेंसर का हम यूज़ करते क्यों हैं रैंकाइन साइकिल में। तो फिर मैंने उसका पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों कंडेंसर को वो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये कंडेंसर का जो प्रेशर है इसको हम ज़्यादा रखना चाहिए कि कम रखना चाहिए। तो अब इसमें ये था कि अगर तुम उसको ज़्यादा रख दोगे तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा वर्क आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा। तो उसको ज़्यादा तो नहीं रख सकते। और अगर हम बहुत ज़्यादा कम रख देंगे तो क्या होगा कि वैक्यूम जो होगा वो उसका जो वैक्यूम बनना है वो बाहर से एयर को सक करने लग जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि लीकेज की प्रॉब्लम आने लग जाए। तो ना तो हम इसको बहुत ज़्यादा ऊपर रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रख सकते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया उन्हें। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बट ये बताओ कि हम कहाँ पर रखेंगे इसको, अगर हमें रखना होगा तो मैंने बोला कि मैम थोड़ा हम लोअर साइड पे रखेंगे एटमॉस्फेयर से, ताकि हमें वर्क डन मिल पाए और उतने में तो लीकेज भी नहीं होगा, उतने वैक्यूम को हम संभाल सकते हैं। उन्होंने बोला चलो बढ़िया ठीक है। तो उसके बाद मैडम ने पूछा कि जो कंडेंसर में जो कूलिंग होती है वो कूलिंग हम कैसे करते हैं। तो फिर मैंने कंडेंसर में कूलिंग के लिए बताया कि जो कूलिंग टावर लगा रहता है वहाँ से वाटर आता है और वाटर, अब जो कंडेंसर होता है उसमें सैलेंट ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो मैडम ने बोला कि सैलेंट ट्यूब क्यों रखते हैं, हम इसको डायरेक्ट मिक्स क्यों नहीं कर देते हैं कंडेंसर वाटर में। तो मैंने बताया कि मैडम जो हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो साफ़ वाटर रहता है, वो डीएम वाटर रहता है, और लेकिन जो कंडेंसर से जो पानी आ रहा है उसको डीएम वाटर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक नॉर्मल पानी होता है। तो अगर हम उसको डीएम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो जो हमारी टरबाइन है या अदर कंपोनेंट है वहाँ पर इरोड होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैडम ने बोला चलो ठीक है। तो फिर मेरा यहाँ पर इंटरव्यू लगभग हो ही गया था। तो फिर जो चेयरपर्सन थे उनने बोला कि आप मेरे को ये बताइए कि आप ज्वाइन हमारी जो ये NPCIL के जो जितने भी सारे वो हैं प्लांट है वो बहुत रिमोट लोकेशन में है, तो क्या आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने बोला यस सर हम कर लेंगे ज्वाइन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वो सबसे पूछते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने इससे पहले कहीं इंटरव्यू दिया था। तो मैंने बोला हाँ सर मैंने इंटरव्यू दिया था, अभी BRC में इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने बोला कि कैसा हुआ इंटरव्यू। तो मैंने बोला सर वो इंटरव्यू तो अच्छा नहीं हुआ मेरा। तो उन्होंने बोला क्यों। मैंने बोला सर वो फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था मेरा, तो मैं थोड़ा ब्लैकआउट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैं बाहर आ गया था। तो दैट इज़ माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओके, तो मोहित आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप कोई टिप्स देना चाहोगे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2024 में, तो अगर आप उनको कोई टिप्स देना चाहोगे या कुछ बातें जो उनको ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू में, वो आप प्लीज़ बता दो। यस, सो ऐसा रहता है कि आप ना इंटरव्यू के लिए जब भी जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ वही पूछेंगे। आप हर किसी क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जो मेरे से पहले गए थे बच्चे तो उनसे तो वो जो RAC में हम पढ़ते थे ना, वो जेट वाला जो पढ़ते थे जो गेट के सिलेबस में है नहीं, तो उनसे वो भी पूछ लिया था। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। बाकी जो अपने आप एक बार जब जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार अपने जो शॉर्ट नोट्स है उनको पूरा रिवाइज करके जाइए। और आप कभी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। और इस चैनल पर भी हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे, तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो अगर आपको चाहिए कोई हेल्प। बिल्कुल यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। हाँ जी, हाँ। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे NPCIL अगर है तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करेंगे, तो अगर पावर प्लांट में काम करेंगे तो आपको पावर प्लांट तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पावर प्लांट और पंप जो फ्लूइड मशीनरी वाला पार्ट है, क्योंकि अगर हम पावर प्लांट में काम कर रहे हो तो आप टरबाइन पे भी काम कर रहे हो, आप पंप से भी काम कर रहे हो, आप रैंकाइन साइकिल पे काम कर रहे हो। तो पावर प्लांट एंड फ्लूइड मशीनरी इज मस्ट। दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट। अगर आप बोलोगे भी नहीं कि मैं पढ़ गया हूं, तब भी आपसे पूछेंगे। और ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपको नहीं आता है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप ये मत, आप ठीक है आप बोल दीजिए कि सर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। आपको सोचना तो है, एटलीस्ट आपको कुछ भी बोलना है, ट्राई देना है आपको, क्योंकि एफर्ट मैटर्स। क्योंकि वो देखते हैं कि लड़का कितना एफर्ट डाल रहा है, कितना सोच रहा है, सोचने की कोशिश तो कर रहा है एटलीस्ट। क्योंकि अगर आपको जो आता है आप सीधा बता दोगे तो उन्हें लगता है कि ये तो इसको पहले से ही आता है, तो इसने क्या सोचा, ये तो कुछ सोच नहीं रहा है ना। तो मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर आपसे मान लीजिए कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपको आता भी हो तो डायरेक्ट मत बता दो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा ऐसा करो कि हाँ हम सोच रहे हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को आंसर करो, तो उन्हें लगता है कि हाँ इसने सोच के आंसर कर रहा है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी इंटरव्यू पैनल जो होता है काफ़ी फ्रेंडली रहता है, रहते हैं 8 लोग मेरे इंटरव्यू पैनल में थे। तो आप जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे लोग हैं, बट वो काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, आपसे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और बहुत अच्छे से आपसे इंटरव्यू लेते हैं और आपको बहुत काफ़ी हेल्प भी करते हैं। मान लीजिए आप अगर कहीं पे क्वेश्चन पर आप अटक जा रहे हैं तो उसको आपको वो हेल्प करते हैं, पूरा प्रॉपर हेल्प करते हैं। तो एंड में मोहित, मैं जानना चाहूँगा आपका इंटरव्यू कितने मिनट चला था लगभग? मेरा इंटरव्यू लाइक चला था 35 to 40 मिनट चला था, बट ये मेरा ही इंटरव्यू चला था उस टाइम पे इतना लंबा, क्योंकि मेरे से पहले जो गए थे उनका सबका 20-20 मिनट चला था, तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा लेट तक चला था। हाँ, तो इंटरव्यू का मिनट्स हो सकता है आपका 25 मिनट भी चले, उसमें भी हाँ, सिलेक्शन हो हाँ, सकता है, हाँ, 50 मिनट चले उसमें बिल्कुल, भी बिल्कुल, उतना बिल्कुल। मायने रखता है ऐसा तो एंड में मैं मोहित का थैंक यू करना चाहूँगा। मोहित वेरी मच थैंक यू। और Thank you. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मोहित से पूछ सकते हो, मैं इनका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा।